Hey guys, welcome to my YouTube channel Let's Flourish. After a break of several months, I am back with my YouTube channel, and with the help of this platform, I will connect you with the NCERT content and the syllabus of NCERT of class 10th, 11th and 12th. We will be discussing about the different subjects, different topics and different things on this online platform. So if you want to know about the different topics of different subject of class 10th, 11th and 12th level, just follow, share and subscribe my YouTube channel. We will be having a great class over here, and I am really heartfelt and welcome you all on my YouTube channel. From today onwards, we are going to have the online class with me. This is Pragati Pandey, and from today onward, we will be having a great class with you guys. So, in today's video, we will be discussing about the class 10th Geography chapter 1, that is Resources and Development. So, in this video, we are going to discuss about the chapter 1, that is Resource and Development of class 10th, and in this video, we will go through a slide, a PPT presentation in which I will provide you different things, different method and different content of this particular chapter. So let us start with your chapter with a PPT. Okay, so here we go. So your topic is resources and development, class 10th standard, and the subject is geography, NCERT. So first of all, we will be discussing about the chapter resources and development. The thing resource is basically named because of the human. In resources, the human involvement is must, and with the help of these resources, the quality of human will be enhanced. कहने का मतलब ये है कि जब तक ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे तब तक रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी क्वालिटी को जानने के लिए कोई नहीं प्रेजेंट होगा. इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो ही इन रिसोर्सेज को यूज़ करता है और डिफरेंट वेज में ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है. सो ह्यूमन बीइंग इज़ द बेसिक structural unit which is useful for resource and for knowing the quality and quantity of the resource. And with the help of these resources, with the uses of these resources, the quality of human life will be enhanced. So we will be discussing about the classification of resources. These resources are classified as natural and artificial or man-made. We can say that it is artificial or man-made. First thing is that the natural resource is divided in two different parts, that is renewable and non-renewable. Renewable resource ऐसे resource होते हैं जिनको हम दोबारा से, मतलब पुराने resources को यूज़ करते हुए, पुराने रेसिड्यू को यूज़ करते हुए हम नए रिसोर्स को बना सकें या उसको हम दोबारा से क्रिएट कर सकें, दैट इज़ रीन्यूएबल. द वर्ड रीन्यू मतलब जिसको रिन्यू किया जा सके, दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दैट मीन्स जिसको हम दोबारा से ना बना पाए, जैसे कि कोयला एक बार अगर जल के ख़त्म हो गया तो हम उसे दोबारा से नहीं बना सकते. लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें नेचुरल गैस की, हम बात करें या हम वाटर की बात करें, वाटर जो है वो रिसोर्स है, अगर वो इवेपोरेट हो जा रहा है तो दोबारा से वो कंडेंसीफाई होकर के हमें वाटर के फॉर्म में मिल जाता है. तो जो वाटर है दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स. तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल. Whereas these biological resources are categorized in two types, that is natural vegetation and wildlife. Natural vegetation that means प्राकृतिक वनस्पति and wildlife that means वन्य जीव. मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये दो तरीके से होते हैं, कॉन्टीन्यूअस और फ्लो. एक जो कंटिन्यूअस है जो धरती पर हमेशा के लिए प्रेजेंट होगा, लाइक विंड, एयर, वाटर, दीज थिंग्स. और बायोलॉजिकल में अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब जिनमें जीव है, जो जीव है उन्हें कहा जा रहा है
बायोलॉजिकल जैसे कि पेड़ पौधे यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, एंड जीव जंतु दैट इज वन्य जीव वाइल्ड लाइफ. Now the non-renewable resource is also classified as recyclable and non-recyclable. That means the resources which can be recycled are called as recyclable. जैसे कि पानी को रिसाइकिल किया जाता है, पॉलीथीन को रिसाइकिल किया जाता है, उसे हम बोलेंगे रिसाइक्लेबल. वेयर एज जिन चीज़ों को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता लाइक कोयला, वो हो गया नॉन रिसाइक्लेबल. So these are several classification of resources. Now the artificial or man-made or human resources are structure and institution. मतलब जो निर्जीव है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों के इन्वॉल्वमेंट से क्रिएट किए गए हैं, उनको हम ह्यूमन और मैन मेड रिसोर्स कहते हैं. लाइक स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, स्कूल हैं, ये सारे ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से बने हैं. दे आर ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज. ओके, एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी. दैट मीन्स द थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड द क्वालिटी. दैट मीन्स ह्यूमन है, जो इंसान है, वो भी एक रिसोर्स है हमारे धरती पे. जितने ज़्यादा ह्यूमन होंगे उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा. लेकिन अगर वही ह्यूमन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि जो हमारा समाज होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, यानी कि हमारा जो समाज होगा वो अच्छी चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा. लेकिन अगर वही ढेर सारे हो इंसान लेकिन वो पढ़े लिखे ना हो तो वो क्या करेंगे, उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट डाउन होगा इन कंपैरिजन टू एजुकेटेड पीपल. तो जो ह्यूमन है उसकी क्वांटिटी यानी कितने हैं और किस तरह के. किसी एरिया में एक ही व्यक्ति है और वो पीएचडी किया हुआ है, और किसी एरिया में 10 लोग हैं जो हाई स्कूल इंटर पास ही हैं, तो वो 10 लोग उस एक पीएचडी पे भारी पड़ेंगे. लेकिन किसी एरिया में 20 लोग पीएचडी वाले हैं और उसी एरिया में 50 लोग हाई स्कूल इंटर वाले हैं जो लेबर मिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये 20-25 जो पीएचडी वाले हैं वो भारी पड़ेंगे. वो क्वालिटी जो समाज की होगी वो अच्छी मानी जाएगी. सो जो रिसोर्सेज है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन और मैन मेड. Natural resources are further classified into renewable and non-renewable resource. These renewable resources then classified in two types, continuous or flow or biological resources, and these biological resources are further classified into natural vegetation and wildlife. Now non-renewable resources are classified into two groups, recyclable and non-recyclable, whereas the human resources are classified into two types, structures and institution in which the involvement of human is must, whereas the quality and quantity of human present in an area is also a type of resource. Now we will be discussing about the types of resources individually. Natural resources are those resources which are created by the nature, example land, water, wildlife and atmosphere. If we will be discussing about the natural resources, we will see that those resources which are created by nature like land, water, animals, atmosphere, all these are natural resources. Resources have been classified on various bases. जो resources होते हैं उनको different criteria के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया गया है. अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है उसका जीवन, लाइफ स्पैन या ख़त्म होने की क्षमता को हम कह सकते हैं. लाइक अगर कोई रिसोर्स है वो कितने दिनों में ख़त्म हो सकता है, इसी को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी. रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया. अगर हम बात करें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी ना के बराबर होती है. लाइक अगर हम बात करें वाटर इज़ अ रिसोर्स, वाटर क्या धरती से कभी ख़त्म होगा? हम डायरेक्टली कहेंगे नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा. लेकिन अगर आप कोयला की बात करें तो कोयला क्या है? इट इज़ एग्जॉस्टिबल. एक समय आएगा धरती पे कोयला नहीं रहेगा, धरती पे कोयला ख़त्म हो जाएगा. अभी भी हम कहते हैं, हम एक आइडिया लगाते हैं कि 30 से 35 साल तक हमारे पास थर्मल पावर या कोयले की मात्रा 30-35 सालों तक के लिए है. दैट मीन्स वंस
इट विल बी एग्जॉस्टेड। बट रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनके एग्जॉशन में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम बात करें तो कहाँ से रिसोर्स का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, उसके बेसिस पर, कहाँ से ये पैदा हुए हैं उसके बेसिस पर इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक दैट मीन्स द रिसोर्सेज विच आर हैविंग लाइफ, ऐसे रिसोर्स जिनके अंदर लाइफ है, जो जीव है, ऐसे रिसोर्स को हम बायोटिक कहते हैं। और वे सभी रिसोर्स जिनके अंदर जीव नहीं है, जो निर्जीव की कैटेगरी में है, उनको हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब है किसका स्वामित्व है, स्वामित्व का मतलब कि किस चीज़ का कौन मालिक है। जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे आपका घर है तो आपका घर आपके पिताजी का है, तो वो आपके पिताजी का खुद का घर है, उस पर किसी और का हक नहीं है, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब आपका एरिया है, आपके एरिया में एक पार्क है, तो वो पार्क क्या है, ना तो आपका है ना वो किसी का पर्सनल है, वो उस पूरे एरिया के लोगों का है। दैट मीन्स दैट रिसोर्स, दैट पार्क इज द कम्युनिटी रिसोर्स, जो पूरे एरिया में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्स। लाइक अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, बर्ड सेंचुरीज की बात करें, या हम बात करें बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स की जो सरकार ने बनाए हैं, वो नेशनल रिसोर्स होते हैं, वो सरकारी होते हैं। अगर हम बात करें तो वो ना तो किसी के होते हैं, और अगर हम कहें तो वो सबके ही है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का वो नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है, वो सरकारी रूप में होता है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि ओशियन, ओशियन जो है, ग्लेशियर्स जो है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं, ये सभी के लिए हैं। या अगर हम बात करें एयर की बात करें, या हम एटमॉस्फेयर की बात करें, हम स्काई की बात करें, या हम हमारे अंतरिक्ष की बात करें, दीज आर international resources. Okay, now renewable resource, all those resources which can be renewed or recycled or reproduced by physical or chemical processes are known as renewable resources. Example, forest, solar energy, wind energy. ऐसे सभी रिसोर्स जिसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो। फिजिकल प्रोसेस मतलब उसके फिजिकल कंडीशन में हम चेंज करके, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर चेंज किया जाए तो हमें दोबारा से वो मिल जाए, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. This is the classification of resource on the basis of exhaustibility. Are those resources which take millions of years in their formation and cannot be renewed or reproduced. The example of these resources are coal, petroleum and natural gas. अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो ऐसे रिसोर्स जिनके बनने में हज़ारों करोड़ों वर्ष की ज़रूरत होती है, और जब ऐसे रिसोर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर उसको जब हम यूज़ करते हैं, तो वो अगर एक बार यूज़ हो गए फिर दोबारा से हमें ऑब्टेन नहीं होंगे अपने उस फॉर्म में। ऐसे रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल होगा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. कह रहा है कि बायोटिक रिसोर्स बायोस्फीयर यानी कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, मछलियाँ हो या चारागाह वाले जानवर हो, ये सभी हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। Now we will be discussing about the abiotic resources. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resource. For example, rocks and metals. अगर हम बात करें ऐसे सभी रिसोर्स जो नॉन लिविंग हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलते हैं, उनको हम एबायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया सॉयल, वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल्स, ऑल दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेज। नाउ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि प्राइवेट एरिया, जैसे कि आपका घर हो गया, जो आपके
नाम से हो, that will be individual resource, or those resources which are operated by an individual or a group of individual. Example, land, pasture, pond, water in wells, etc. Community owned resource are those resources which are managed by all members of the community. ऐसे रिसोर्स जिनको पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी मिल के जिनको बनाती है और जिनको उपयोग करती है, ऐसे रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं. द एग्जाम्पल्स आर ग्रेजिंग ग्राउंड, जहाँ पर गाय भैंस चारा खाते हैं, घास चरते हैं. ब्यूरियल ग्राउंड, जहाँ पे डेड पीपल को बरी किया जाता है. पब्लिक पार्क्स एंड पिकनिक स्पॉट्स. Now, national resources. These are the resources which are related to a particular nation. Land resource are within the political boundaries, and oceanic resource up to 12 nautical miles. Example, mineral, forest, wildlife, ocean resource, etc. ऐसे सभी रिसोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर देश का हो, लैंड जो उस पर्टिकुलर देश की एरिया के अंदर आता हो, या अगर हम बात करें ओशियन, जैसे समुद्र जो होता है, जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया पेनिनसुलर है. दैट मीन्स इट इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स. तो जो वाटर है वो ओशियन है. ओशियन में 12 नॉटिकल माइल तक अगर हम बात करें तो कोई कंट्री है जिसके बगल में जस्ट ओशियन है, तो उस कंट्री का एरिया ओशियन में फिशरिंग करने के लिए, फिशिंग के लिए 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया उस कंट्री का होता है, वो वहाँ पर फिशिंग कर सकती है. लेकिन अगर 12 नॉटिकल माइल के आगे आप अगर जाएंगे तो वो इंटरनेशनल एरिया होता है, यानी कि समुद्र में किसी कंट्री से लगा हुआ 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया उस कंट्री का ही माना जाता है, तो वो भी नेशनल रिसोर्स में आएगा. अगर हम बात करें किसी कंट्री के भी अंदर लैंड के नीचे जो भी मिनरल्स पाए जाएंगे वो उस कंट्री के होंगे, जो फॉरेस्ट होगा उस कंट्री का होगा, जो एनिमल्स होंगे उस कंट्री के होंगे. मतलब दैट पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सभी उसी कंट्री के रिसोर्स माने जाते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर मैनेज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. ऐसे रिसोर्स जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उनको गाइड कर रहे हों, उनको मैनेज कर रहे हों, ऐसे सभी रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं. ये रिसोर्स जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से लगे हुए तो होते हैं, लेकिन उस पर अधिकार जो होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, यूनाइटेड नेशन का होता है. ऐसे रिसोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ओशियनिक रिसोर्सेज, लाइक ओशियन एंड पेट्रोलियम. इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज. सो in today's video we have discussed about the natural resources. Now we will be discussing about the human or man-made resources in the next video. That's all for today, guys. Please like, share and subscribe my YouTube channel for getting more updates, and we will have a great class ahead. So keep subscribing, keep like the channel. Thank you, guys.